اسے کلمہ یاد نہیں تھا، اور پھر اس بیچارے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ جب اس کے سامنے ہمارے نبی کی سیرت بیان کی گئی تو وہ 70 سال کا بوڑھا کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ نام سنا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہیں، نام ان کا امام صاحب ہے، بچوں کا نام حسن ہے، اس طریقے کے سارے نام ہیں۔ ایک اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، ہمارے یہاں ایک مکاتب کا نظام چلا ہے، مدارس کا نظام چلا ہے۔ لگ بھگ ہمارے پورے ضلع کے اندر 28 مدرسے ہیں، ماشاءاللہ 28 مدرسوں کے اندر گزشتہ سال ہم نے جائزہ لیا تو لگ بھگ 70 بچے حافظ قرآن ہوئے، اور لگ بھگ الحمدللہ 14 طلبہ ماشاءاللہ عالمیت سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ماشاءاللہ نظام بنا ہے، جس کی وجہ سے جو فائدے نظر آ رہے ہیں، یہی مدارس اور مکاتب کے قیام کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں۔ جب تک ان کا قیام رہے گا، ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان بچا رہے گا، ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر جو ہے ایمان اور یقین اور اعمال والی زندگی ہماری یہاں رہے گی۔ مگر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ مدرسے کی اہمیت اور مکاتب کی اہمیت پر انشاءاللہ ہمارے استاد محترم آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات کریں گے۔ چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں مدارس کو تو آ رہے ہیں، ہمارے بچے مکاتب کو آ رہے ہیں، مگر میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں 1 گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو اس گھروں کے واپس لوٹنے پر ہمارے گھروں کے اندر کیا دین کا مزاج ہے۔ جو کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تو ہمارے بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، ایمان، اعمال، اخلاق، یہ ساری چیزوں پر محنت ہوتی ہے۔ ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، سنت والی زندگی کو سیکھ کر آتے ہیں، مگر جب آنے کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں تو ان گھروں کے اندر جو ان کا وقت گزرتا ہے گویا کہ یہ کافی وقت گزرتا ہے۔ 8 گھنٹے تو ہمارے بچے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں غیروں کا تسلط ہے، ایسی جگہوں پر ہمارے بچے جاتے ہیں کہ 8 گھنٹے یہودیوں کے گود میں بیٹھتے ہیں، یا تو نصرانیوں کے گود میں بیٹھتے ہیں، یا تو عیسائیت کے گود میں بیٹھتے ہیں، یا تو غیروں کے گود میں بیٹھتے ہیں۔ مگر جب واپس آ کر ان مکاتب کے اندر 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے وقت لگا کر جب ہمارے گھروں کو ہمارے بچے واپس لوٹتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہم نے بچوں کے لیے کیا دین کا مزاج بنایا۔ میں یہ بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر جب بچے آئیں گے تو وہاں دین کے مزاج کو دیکھیں گے تو ہمارے بچے دیندار بنیں گے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر دین کا مزاج نہیں، ہمارے گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں، ہمارے گھروں کے اندر تربیت والا ماحول نہیں، ہمارے گھروں کے اندر عبادت والا مزاج نہیں، ہمارے گھروں کے اندر تلاوت والا مزاج نہیں، ہمارے گھروں کے اندر حیا اور پاک دامنی والا مزاج نہیں، ہمارے گھروں کے اندر مسنون اعمال کا اہتمام نہیں، تو ہمارے بچے جو وقت گزاریں گے تو اس اوقات کے اندر ہمارے بچوں کا جو وقت گزرے گا وہ آپ کو دیکھیں گے، اپنے والدین کو دیکھیں گے، باپ کو دیکھیں گے، ماں کو دیکھیں گے کہ باپ کیسے زندگی گزار رہا ہے، ماں کیسی زندگی گزار رہی ہے، بھائی کیسے زندگی گزار رہے ہیں، بہن کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بچے دیکھیں گے۔ اگر ان بچوں کو وہاں مثالی باپ مل گیا اور ان بچوں کو مثالی ماں مل گئی، ان بچوں کو اگر مثالی جو ہے بھائی مل گئے اور مثالی بہن مل گئے تو ماشاءاللہ ان بچوں کی جو تربیت ہوگی، پھر یہاں ایک مکتب سے وہ بچہ، مدرسے سے وہ بچہ یا بچی نکل کر گھر پر آئیں گے، پھر یہاں کا جو اثر ہوگا وہ گھر میں اثر ملے گا، تو پھر ماشاءاللہ ایک کیفیت بنے گی ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط بنے گا اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر اعمال آئیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے کے اندر گھروں کے اندر ایسا مزاج تھا، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ 2 بھائیوں کو آپس میں گلے ملتے ہوئے معانقہ کرتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشی سے معانقہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بچوں سے کہ بچوں
किस खुशी की बुनियाद पर आप जो है इन बच्चों से आप जो मिल रहे हो, किस खुशी की बुनियाद पर आप दोनों गले से गले मिल रहे हो। तो उस बच्चों ने कहा आज हमारे घर में हुजूर का मेहमान आया है, यानी आज हमारे घरों के अंदर हुजूर का मेहमान आया है। तो बड़े परेशान हो गए। एक ज़माना हुजूर का वो गुजरा है जहाँ पर फरमाती है कि कोई मेहमान हुजूर के कुर्ब का भी ज़माना नहीं बल्कि बड़ी दूर ज़माना है, और तुम कह रहे हुजूर के मेहमान हो, मुझे मेहमान सिखाओ। तो बच्चे थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर ली, उन्होंने कहा कि मुझे मेहमान सिखाओ। तो बच्चों ने बड़े अजीब अंदाज से एक जुमला कहा, असल हुजूर के मेहमान नहीं आए बल्कि हुजूर के घर का फाका आज हमारे घर में आया। यानी एक ज़िंदगियाँ नज़र आती थी जहाँ पर एक मिजाज नज़र आता था। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हज़रत शायर के मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनकी ज़िंदगी की मिसाल ऐसे थे कि उनके वालिद मोहतरम या उनकी वालिदा है फरमाती कि उनकी घर की ज़िंदगी कैसी थी कि एक मरतबा में रोज़ाना 7 मंजिल पढ़ लिया करती, और माशाअल्लाह यानी मसनून दुआएं तो माशाअल्लाह चलते फिरते, और माशाअल्लाह ऐसा मिजाज था, ऐसा माहौल था उनके घरों के अंदर, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फरमाते कि बाप का हाल ये था कि 35 साल गुजर गए, तकबीर उला फौत नहीं हुई। एक बच्चे ने अपने बाप की ज़िंदगी को देखा, एक बच्चे ने माँ की ज़िंदगी को देखा, माँ को कुरान पढ़ते हुए देखा, बाप को नमाज पढ़ते हुए देखा, माँ की ज़िंदगी के अंदर सुन्नत वाली ज़िंदगी देखी। तो माशाअल्लाह जिसकी वजह से ऐसा मिजाज बना, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िंदगी के अंदर इतनी तरक्की अता फरमाई कि आज मौलाना इलियास साहब को पूरी दुनिया नहीं बल्कि क़यामत तक याद रखेंगे। 200 मुल्कों के अंदर अल्लाह ने दावत की मुबारक मेहनत को पहुंचा दिया, एक फ़र्द की मेहनत पर, एक मर्द एक फ़र्द की फिक्र पर, मगर इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी फिक्र आने के लिए उनका घर, क्योंकि ये फितर का ज़माना है और इस फितर के ज़माने के अंदर अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। वरना तो अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत और इस्लाह और अखलाक की अगर हमने फिक्र ना की तो एक वक्त आएगा कि हम खून के आंसू रोएंगे और फिर उस वक्त सरों से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि फिर अफसोस के अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए ये हमारे जो मदारिस हैं और ये हमारे मकातिब हैं, इन मदारिस और मकातिब के अंदर जो है अपने बच्चों की जो है फ़िक्र करें ताकि हमारे बच्चों का ईमान महफूज रहे, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर आमाल जिस तरीके से सहाबा के और सहाबियात की ज़िंदगियों में जिस तरीके से उनकी औलादों में दीन था, इसकी फ़िक्र करें कि वो दीन हमारे बच्चों के अंदर भी आए, हमारे बच्चों के अंदर नबियों की घरानों की चीज़ों की आदत डालें। जैसा नबियों के घरानों के अंदर शुक्र था, नबियों के घरानों के अंदर जिस तरीके से खिदमत के जज्बे थे, जिस तरीके से नबियों के घरानों में सादगी की ज़िंदगी थी, जैसे नबियों के घरानों के अंदर इताअत और फर्माबरदारी थी, जैसे नबियों के घरानों के अंदर हया और पाक दामनी थी, इस तरीके से हमारे घरों के अंदर भी और हमारे घरों के अंदर भी हमारे बच्चों के सामने नबियों की घरानों की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम अपने बच्चों के सामने पेश करेंगे तो हमारे बच्चे हया वाले भी बनेंगे, हमारे बच्चे दीनदार भी बनेंगे, हमारे बच्चे सुन्नत वाली ज़िंदगी को भी गुजारने वाले बनेंगे। देखिए ये बहुत अहम वक्त का अहम तकाज़ा है, क्योंकि आज जो जिस तरीके से ये फितनों का ज़माना है, फितनों वाला माहौल है, इस फितने वाले माहौल के अंदर हमारे बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। एक वक्त वो था कि अपने ज़मानों के एक वक्त वो था कि जहाँ बच्चों की तरबियत के लिए ऐसी फिक्र हुआ करती थी कि छोटा सा छोटा बच्चा ही रोया करता था इस खौफ से कि किसी ने कहा कि किसी हज़रत बहलूल ने एक बच्चे से कहा, बेटे फरमाते कि बेटे क्या बेटा तुम खेलो क्यों रो रहे हो, बच्चे खेल रहे हो और तुम रो रहे हो। तो हज़रत बहलूल से बच्चे ने कहा, हज़रत खेलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, किस लिए पैदा हुए हैं? तो फरमाया इबादत के लिए पैदा हुए हैं। तो कुरान पढ़ा करता था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इबादत के लिए पैदा किया है। छोटे बच्चे कुरान से जवाब दिया करते थे, और बेटा इतनी उम्र में तेरे दिल में इतना खौफ कैसे आ गया? तो उसने कहा मेरी माँ को मैंने चूल्हा जलाते हुए देखा, पहले वो चूल्हे डालती है, उसके बाद बड़ी लकड़ियाँ रखती है। मैं इस डर से रो रहा हूँ कि कल आखिरत के अंदर जहन्नम में अल्लाह बच्चों को डालेगा फिर बड़ों को डालेगा। यानी एक कैसा मिजाज बना था। हम अपने घरों के अंदर इस तरीके के मिजाज को बनाएंगे तो हमारे बच्चों की अंदर तरबियत आए, हमारे बच्चों की इस्लाह होगी, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माशाअल्लाह
ہر جگہ پر مکاتب کا ایک جال بنایا پھیلایا جا رہا ہے، ہر قریے میں مکاتب اور مدارس کا قیام ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو جائے۔ ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سوئے ہوئے اچانک نیند سے ایک دم کھڑے ہو گئے اور پھر صحن میں پھرتے پھرتے حضرت کی گھر والوں نے کہا حضرت اتنی بے قراری کیوں، آرام کر رہے تھے اور پھر بے قرار ہو کر صحن میں پھر رہے ہو؟ تو مولانا الیاس صاحب نے کہا ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کی ایمان کا کیا بنے گا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بھئی ہمارے بچوں کی اصلاح ہو، ہمارے بچوں کی تربیت ہو، اس کے لیے ہم کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے گھروں کے اندر جس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت ہوتی تھی کہ رمضان میں بچوں کو روزہ رکھا تھے عادت ڈالنے کے لیے تاکہ ہمارے بچوں میں وہ چیز عبادت بن جائے، بچوں کو روئی کے کھلونے دیا کرتے تھے تاکہ ہمارے بچے روزے سے رہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ایک شرابی آیا تو فرمایا کہ آج ہمارے مسلمان کے بچے روزے سے ہیں اور تم شراب پی رہے ہو۔ حالانکہ مدینے کے ایک ایک بچوں کی زندگیوں کو اس طریقے سے ڈھالا تھا کہ ان کے سامنے جنت کے تذکرے تھے، ان کے سامنے جہنم کے تذکرے تھے، ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تذکرے تھے، ان کے سامنے فرماتے کہ اللہ کا خوف وغیرہ دلایا جاتا تھا، اللہ کے خوف اور خشیت کو ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا۔ بچوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے فرماتے کہ جنت اور جہنم کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر سے نکل گئی۔ اس لیے میں آج اس اجلاس سے ایک پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر باپ بیٹھا ہوا ہے، ہر مستورات میں سے ہر مائیں آئی ہوئی ہے، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آپ مثالی بنو، جیسے صحابیات اپنے بچوں کے لیے مثالی بن کر گئے، صحابہ اپنے بچوں کے لیے مثالی بن کر گئے۔ ایک مرتبہ تو آپ نے بارہا سنا ہے، مدینے میں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے اور یتیم ہے، حضور اسے عید کے میدان میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضور کے کندھوں پر بیٹھ کر اس بچے کو دیکھ کر کہا تھا کاش ہمارا باپ بھی نہ ہوتا تو ہم بھی حضور کے کندھوں پر ہوتے۔ یعنی ایک ایسے جذبے ہوتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے گھروں کے اندر بھی اعمال ہو، ہمارے بچوں کے سامنے ہمارے نمازوں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، اور بالکل ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا اہتمام، سیدھی سادی زندگی اور فرماتے کہ تربیت کا اہتمام، حیا اور پاک دامنی ہمارے بچوں کے سامنے تذکرے کرتے رہے، جیسا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر آپ نے کیسے تربیت کی۔ حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی کے گھر بھیج رہے تو حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ علی کے گھر جا رہی ہو، کبھی دنیا کا سوال نہ کرنا۔ حضرت علی کے گھر جا رہی ہو، کبھی شکایت لے کر باپ کے دروازے پر نہ آنا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ دنیا مانگنے گئی تو تسبیحات لے کر گئی تھی کہ بیٹا یہ تسبیحات کر لو، آخرت میں کام آئے گی۔ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کبھی خبر سمجھائی، کبھی آخرت سمجھائی، کبھی جہنم کو سمجھایا۔ آج ضرورت ہے ہمارے گھروں کے اندر ایسا دین کا مزاج لانا۔ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی یہ ہمارے اساتذہ کا پڑھا ہوا سبق تھا۔ انشاءاللہ ہمارے اساتذہ کی باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گی۔ انشاءاللہ سارے احباب طلب سے سنیں، ان باتوں کو غور سے سنیں، اور یہ سارا مجموعہ جو ہے یعنی یہ سوچ کر جائیں کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ صرف سننے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں بلکہ ہم ان باتوں کو لے جائیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ مجموعہ ہے جتنا طلب سے سنے گا اللہ ہدایت کا نور اتنا دلوں کے اندر ڈالے گا۔ بے طلب بن کر نہ جائے بلکہ طلب کے ساتھ بیٹھ کر ان ساری باتوں کو سنیں، اور یہ سارا مجموعہ یہ طے کر جائیں کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد خود کی بھی زندگیوں کو بدلیں گے اور اپنے اور بچوں کی زندگیوں کو بھی بدلنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اپنی زندگیوں کو نبیوں کی گھرانوں والی چیزوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عزائم اور یہ ارادے اور یہ نیتیں لے کر جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر باقی رکھے اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ اسی لیے میں نے جو قرآن کی آیت شریفہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہاری موت اسلام پر ہے۔
हम अपनी ज़िंदगियों को इस तरीके से बनाएं जैसा कि कहा, जैसे जिएंगे वैसे मरेंगे, जैसी ईमान और अमाल वाली ज़िंदगी मौत ईमान और अमाल वाली ज़िंदगी। बस इन चंद बातों पर अपनी रात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं जितनी बातें कही गई सुनी गई उन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। जज़ा हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब को समाअत फरमा रहे थे। हज़रत का किताब हम सब के लिए बड़ा अहम होता है, लेकिन वक्त की क़िल्लत के होते हुए हज़रत ने बड़े मुख्तसर अंदाज में खिताब फरमाया, लेकिन बड़ी जामे बातें हज़रत ने अर्ज़ की हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत वाला को जज़ाए खैर अता फरमाए और हम तमाम को हज़रत वाला से हमेशा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब मैं जो हमारी एक कड़ी बची हुई है, मैं आगे आने वाले क्योंकि आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करना, उन्हें वेलकम कहना, आहलन व सहलन मरहबा कहना और खंदा पेशानी के साथ उनसे मुलाकात करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा है। हम यहाँ आने वाले तमाम मेहमानों का प्रतिबाक खैर मक़दम करते हैं और उन्हें इस्तक़बाल पेश करने के लिए दावत देते हैं। इस महल्ले के नौजवान आलिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब को कि आप तशरीफ़ लाए और हम सब की जानिब से इस्तक़बालिया पेश फरमाए इस शेर के साथ। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कल्याण बिछाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल जलाल व खालिक़ कायनात के लिए सज़ावार हैं जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। दरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करता हूँ आक़ाए बतहा सय्यिदुल अव्वलीन वल आख़िरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन जलसा, आज का दिन हमारे लिए निहायत ही फरहत व मसर्रत और खुशी का दिन है कि आज की इस पुररौनक बज़्म में इस बावक़ार स्टेज पर जिन आली मकाम उलमाए रब्बानीकीन और मेहमानान निज़ाम का हम इस्तक़बाल कर रहे हैं, वो उम्मत मुस्लिमा का मख़सूस तबक़ा है। वो नाइबीन रसूल और जानिशीन अंबिया हैं जिनकी ज़ात इंसानी बदन में रूह की हैसियत रखती है, जो दीन मुहम्मदी के मुहाफ़िज़ व निगहबान हैं और उलूम नबुव्वत के शारी और तर्जुमान हैं। उन्हीं में से हमारे मेहमान मुकर्रम जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनकी आमद पर इस जलसे की रौनक में इजाफ़ा हुआ है, वह शख्सियत साहिब फ़ज़्ल व कमाल हज़रत क़िबला दामत बरकातुहू अमीर शरीयत कर्नाटक शेखुल हदीस व मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम सबील और रशाद बेंगलुरु हैं। आज से तकरीबन 6 साल पहले 2018 ईस्वी में आप ही के दस्ते मुबारक से हमारे मदरसे तालीमुल कुरान का संग बुनियाद रखा गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला ही के हाथों मदरसा तालीमुल कुरान का दूसरी मंजिल का इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ तमाम मुंतज़मीन व ज़िम्मेदारान मस्जिद अक़बा और मदरसा तालीमुल कुरान की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। हज़रत वाला की तशरीफ़ आवरी पर दिल की गहराइयों से अहलन व सहलन और मरहबा कहता हूँ और आपका पुरतबाक इस्तक़बाल करता हूँ कि आपने अपने तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद हमारी दावत को शर्त कबूलियत से नवाजा और हमारी हिम्मत अफजाई की। और इसी तरह हमारे मेहमान खुसूसी मुक़र्रिर शोला बयान हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब मादनी व कासमी दामत बरकातुहू, उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह मदरसा दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह व सदर जमियत उलमा बेंगलुरु
شہر بنگلور میں ماشاءاللہ آپ کی بہت اونچی خدمات ہیں. آپ نے ہماری دعوت کو شرط قبولیت سے نوازا. میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور کمال فرحت و مسرت کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے کولار ضلع کی مشہور شخصیت مبلغ و قوم و ملت کے مفکر واعظ شیریں بیاں حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب باقی دامت برکاتہ تشریف فرما ہے. میں آپ کا بھی دل کے عمیق احساسات کے ساتھ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. اور اسی طرح میں اب میرے استاد محترم حضرت مولانا شعیب احمد صاحب ارشادی دامت برکاتہ میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. اور اسی طرح ہمارے شہر یعنی معلوم تعلق کے MLA KY ننجے گوڑا صاحب جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، میں آپ کا بھی استقبال اور ویلکم کہتا ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائیں. اور حضرات علماء کرام جن کی گراں قدر خدمات ہیں وہ یہاں جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہیں. ہر ایک کا نام لینے سے میں قاصر ہوں، سب حضرات علماء ائمہ کرام کا اور عمائد شہر اور تمام امیر شریعت حضرت اقدس قبلہ دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد و شیخ الحدیث دارالعلوم سبیل الرشاد اور حضرت مولانا محمد کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا شعیب صاحب احمد فیوزہم اور نیز شہر کے مقتدر علماء کرام اور شہر مالور کے مقتدر فیلوز، ذمہ داران گرامی قدر، عمائدین شہر، محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں. بات ہے کہ حضرت مولانا محمد کلیم اللہ صاحب باقی دامت برکاتہم نے اپنے دل کے درد سے مکاتب کے سلسلے میں اور بچے جو ہمارے پڑھتے ہیں ان کی مکمل نگرانی ماں باپ کیسے کریں، حضرات اکابر کے اقوال اور ملفوظات کی روشنی میں آپ نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مجھے حکم کیا گیا حضرت اقدس محتمم صاحب دامت برکاتہم کے سامنے میں اپنی لب کشائی کیسے کروں. میرے وہ استاذ الاساتذہ ہیں، استاذ بھی ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس غرض سے کہ میرے اس منتشر سما خراشی پر حضرت میری اصلاح فرمائیں گے اور مجھے حضرت کے ذریعے سے راستہ ملے گا. یہ سوچ کر میرے عزیزوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں اور کچھ باتیں آپ حضرات کی توجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کی خدمات میں عرض کرنے کی کوشش کروں. میرے عزیزوں، میں نے علم کے عنوان پر آپ کی خدمات میں 2 آیات کریمہ اور 2 حدیثیں تلاوت کی. بات یہ ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں چہل سبق میں جماعت فارسی میں پڑھی ہے، بے علم نہ تواں خدا را شناخت. میں آپ سے توجہ چاہوں گا کہ غور سے بات سنیں اور پیچھے جو ہمارے بچے ہیں جو آگے چل کر ہمارے مقتدر رہنما بنیں گے ان کو بھی سنیں، وہ بھی سنیں. اس بات کی آپ انتظام فرمائیں. پیچھے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو پیار سے، محبت سے فقیر کی باتیں سننے کی طرف، عاجز کی باتیں سننے کی طرف متوجہ کریں. شور و شغب کے درمیان میں بات کہیں بھی نہیں جا سکتی، سنی بھی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بے علم نہ تواں خدا را شناخت، مطلب یہ ہے کہ بغیر علم کے خدا کو پہچان نہیں سکتا. بغیر علم کے اگر خدا کو پہچاننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. مشہور وہ حدیث قدسی ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرفا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ فأحب ان اعرفا، ایسے کچھ الفاظ حدیث میں ہیں، مفہوم یہ ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، میرے بندے مجھے پہچانے، میری کائنات جن کو میں نے بنایا ہے وہ مجھے پہچانے، اس لیے میں نے کائنات بنائی۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ میری کائنات کے بندے، انسان خاص کر جو مخلوقات میں سے اشرف مخلوقات ہیں، وہ مجھے پہچانے۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات سمجھتے ہوں گے کہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ بچہ بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانا، وہ کیسا بچہ ہے؟ اولاد اگر ماں باپ کے انعامات اور احسانات، پرورش اور ان کے ایثار اور قربانیوں کے باوجود بھی یہ اولاد اگر اپنے ماں باپ کو نہ پہچانے تو وہ کیسے اولاد ہوں گے؟ آپ سمجھیں۔ ایسے ہی انسان، اللہ کے بندے اپنے اندر ابدیت رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے تلے دبے ہوئے اگر اللہ کو نہ پہچانے تو ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں، کیسے انسان ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے بارے میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ شہر کے رہنے والے ہو یا قریہ دیہات کے، چاہے وہ فضل و کمال والے ہوں، علم کی دولت، چاہے وہ مال والے ہوں یا غربت والے ہوں، تو عزیزو اگر وہ خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، خدا کی پہچان ان کے دل میں نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی، بولو بھائی، بدتر ہے۔ کیوں؟ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ خداوند قدوس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اپنے دل سے، اپنے جان سے، اپنے اعضاء سے، جوارے سے نہیں کرتی ہو، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز۔ ہمارے بڑوں نے پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تاکہ یہ مجلس ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے۔ حضرت کی توجہات، حضرت قبلہ عامر شریعت کی توجہات ہمارے اوپر مبذول ہیں، ان کی توجہات کے پر تو تمام سامعین کے اوپر ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہوں گا، اس آیت کریمہ کی وجہ سے ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی، ہر چیز تسبیح کرتی ہے، پانی بھی تسبیح کرتا ہے، پانی بھی تسبیح کب تک کرتے ہیں یہ؟ جب تک کہ ان کی موت نہ ہو جائے۔ پانی کی موت کیا ہے؟ اس کا ٹھہر جانا ہے۔ پانی لیونگ واٹر، بہتا پانی، جاری پانی، وہ ہے جس پہ حیات ہے۔ اگر وہ پانی رک جاتا ہے، اور رکنے کی مقدار، ٹھہرے ہوئے پانی کی مقدار کیا ہے؟ 10 گز کو 10 گز، 10 گز چوڑا، 10 گز لمبا، یعنی گز کے اعتبار سے فٹ، جی 1.5 فٹ، 15 فٹ چوڑا، 15 فٹ لمبا، چاہے وہ اسکوائر ہو یا ٹرانگل ہو، مثلث 3 کونے والا ہو، چاہے وہ مستطیل لمبا ہو، اتنی مقدار 325 فٹ کی مقدار کا اگر ہے تو وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ 325 فٹ کے مقدار میں کوئی پانی آپ نے جمع کیا ہے، کسی نے جمع کیا ہے، وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ گہرائی کا اعتبار نہیں ہے، اتنا گہرا کم از کم ہو کہ پانی کو اپنے چلوں سے اٹھانے سے اس کا تہ، یعنی پانی کی زمین نہ دکھتی ہو، اتنا کافی ہے۔ یہ پانی بھی بہتے پانی کے حکم میں ہے، یہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ اور بہتے پانی کے
इंतहा की कोई हद नहीं है। लंबी लंबी नदियां हैं, नदियों का काम क्या है, समंदर में जाकर गिरना है, चाहे हजारों किलोमीटर सफर करके समंदर में जाकर गिर जाती है। मेरे अजीजों, ये पाली तस्बीह करते रहते हैं कब तक, जब तक कि इनकी मौत ना हो जाए। इनकी मौत क्या है, इनका ठहर जाना है। ढेले चाहे वो पत्थर के हों या वो मिट्टी के हों या किसी गार गच्चे के हों, ढेले ये भी तस्बीह करते रहते हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया, अगर कोई ढेले से इस्तिंजा करता है, पेशाब करने के बाद पेशाब की जगह को जज्ब करना चाहता है, सुखाना चाहता है मिट्टी के ढेले के जरिए से, तो उलमा ने ये अदब बताया, वो मिट्टी के ढेले को 3 मरतबा किसी दीवार से, किसी भी पत्थर से 3 मरतबा दे मारे। आप अगर 3 मरतबा उसे मारेंगे, दबाएंगे किसी पत्थर और दीवार से, उसे टच करेंगे 3 मरतबा, तो वो तस्बीह करना रुक जाता है। फिर उसे आप इस्तेमाल करें अपनी गंदी जगह में पेशाब बहाने की। ढेला से इस्तिंजा करना मसनून है, और ढेले से इस्तिंजा करने के बाद में पानी से भी इस्तिंजा करना। इस्तिंजा के माने गंदगी से नजात हासिल करना, ये सुन्नत है। मेरे अजीज़ों, कुबा, मस्जिद कुबा के बारे में रहने वालों की अजीब इत्तेफाक है। ये मस्जिद कुबा है और उसके सामने मदरसा तालीमुल कुरान है, और सबसे दुनिया की सबसे पहली मस्जिद खाने काबा के बाद मेरे अजीज़ों वो है जिसका नाम मस्जिद कुबा है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने वाले, अतराफ व अकनाफ में बसने वाले ऐसे हैं कि वो पाक हो जाना पसंद करते हैं, पाक रहना पसंद करते हैं। और बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकी वालों को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हुजूर पर जी आयत नाज़िल हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह भी हुक्म नाज़िल हुआ जो इस आयत से पहले है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन। वो जरूर भी जरूर वो मस्जिद जो पहले ही दिन से तक़वे पर उसकी बुनियाद रखी गई, उसमें जाकर नमाज पढ़ना आपके लिए जरूरी है। समझ में हुजूर को अल्लाह ने हुक्म दिया, क्यों? इसमें इसलिए कि उसमें ऐसे लोग रहते हैं जो पाकी को पसंद करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला पाकी करने वालों को चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद कुबा गए, वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी, और फिर अपने वो सहाबा जो मस्जिद कुबा के अतराफ अकनाफ में रहते हैं, बसते हैं, पूछा कि देखो तुम्हारा क्या अमल है, अमल तुम्हारा क्या है बताओ। बात यह है कि तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाज़िल की। ये आयत करीमा, सहाबा खुश हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, जो भी हमारा अमल है वो आपका हुक्म है, हम अपनी तरफ से कोई अमल नहीं किए। रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो पैगंबर तुम्हें दे उसे मजबूती से पकड़ो, उस पर जम जाओ, और जिससे पैगंबर तुम्हें मना फरमाते हैं उससे रुक जाओ, पास आ जाओ या रसूल अल्लाह, जो भी है वो आपका हुक्म है, आपकी सुन्नत है। तो मैं कहो क्या है? सहाबा ने कहा हम पेशाब करते हैं, पाखाना करते हैं, तो ढेले से उसे साफ करते हैं 3 मरतबा, और फिर पानी से भी धोते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलैकुमू, तुम्हारे ऊपर ये काम जरूरी है, जो कर रहे हैं वो करो। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई, और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया जाकर उसमें पढ़ो, ला तक़ुम फ़ीही अबदा।
कलम है, पता नहीं कितने कितने हैं। हर ताजिर को ये चीजें जानना फर्ज है, वरना तिजारत उसकी गलत हो जाए, वो धोखा खा लेगा। मोमिन ना धोखा देता है ना धोखा खाता है। ला यखदउ वला ला यखदिउ वला युखदा, सवाल नहीं पैदा होता। दूसरा दर्जा क्या है? फर्ज किफाया। फर्ज किफाया क्या है? फर्ज किफाया कुरान को पढ़ना जी ऐसे जैसे अल्लाह ने नाजिल किया है। सात उन्ज़िल कुरान वाला सब आते आरूफिन, फिर उसका माना मतलब पहचानना, उसका नासिख मंसूख पहचानना, उसकी तफसीलात जानना, उसके असबाब नुज़ूल, शान नुज़ूल, मवारिद नुज़ूल जानना, अहादीस को जानना और अहादीस की तफसीलात जानना। मेरे अजीज़ों दोस्तों और बुजुर्ग, उलूम व मानी जो अरबी उलूम है, 18 उलूम है, उन तमाम को जानना, मैं आप सुन रहे मेरे भाई, ये फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब क्या है? तमाम पर फर्ज नहीं है, बल्कि गाँव वालों में से, शहर वालों में से चंद अफराद भी वो हासिल कर रहे वो इल्म, सबकी तरफ से जिम्मेदारी क्या हो जाएगी अदा। जैसे जनाजे की नमाज क्या है? फर्ज किफाया। किसी का इंतकाल हो गया, मेरा इंतकाल हो गया, किसी का इंतकाल हो गया, तो पूरे मालूम वाले पढ़ना फर्ज नहीं है, चंद लोग भी पढ़ लिए तो सबकी तरफ से क्या हो जाएगा। जैसे सुन्नत किफाया है रमजान का एहतिकाफ, आखिर अशरे का। तीसरा दर्जा क्या है? मुस्तहब है। वो ये है कि इन जो उलूम है, ये 18 उलूम है, हदीस का, तफसीर का, और जो मेरे अजीज और फिक़ह का, उसूल फिक़ह का, उसूल तफसीर का, उसूल हदीस का, ये जो उलूम है उसमें माहिर बनना, जैसा डॉक्टर माहिर बनता है, स्पेशलिस्ट बनता है, माहिर बनना ये मुस्तहब है, पसंदीदा है। ये 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा फर्ज है, इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर, छोटे बड़े पर फर्ज है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की और बार बार दुआ करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरा इल्म ज़्यादा कर दे, मेरे इल्म में इजाफा कर दे, इसलिए कि इल्म की कोई इंतहा नहीं। और जब इल्म बढ़ता गया तो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे गुजरे हुए लोगों का भी इल्म दे दिया गया और बाद में आने वालों का भी इल्म दे दिया। मेरे अजीज़ों, अपने आप की खिदमत में चंद अहम बातें अर्ज़ करके अपनी बात समेटता हूँ और ख़त्म कर देना चाहता हूँ। बात यह है कि इल्म के हासिल करने के लिए बहुत से असबाब हैं, बहुत से ज़रिए हैं। उनमें से जो पहला इल्म है, इल्म पहला दर्जा है, फर्ज है, उसके लिए हमारे बड़ों ने मकातिब का जाल बिछाया है। पर समझ रहे भाई, मकातिब बोले तो वो मदरसे जो सुबह में, शाम में जी महल्ले के, गाँव के, बस्ती के, देहात के बच्चे बच्चियों को, बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं, बुलूग के करीब हो जाती हैं, तो उनको जी उस्तानियों का इंतज़ाम करके सुन्नत व शरीयत का जी पासो लिहाज रखते हुए बच्चों को, बड़ों को तालीम देना है कि जिससे हमारे बच्चे, हमारे बड़े हलाल हराम को जान लें और वो ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजार सकें। ये जाल बिछाना है। और बकिया 2 दर्जों के लिए हमारे बड़ों ने मदरसों का निज़ाम बनाया, मदरसों का जाल बिछाया। और हमारे हिंदुस्तान में हमारे पूरे मदरसे जाकर दारुल देवबंद पर क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, उसका फैज़ है। और दुनिया के पूरे मदरसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मदरसा जिसका नाम सुफ़ा है, हुजूर ने अपने मस्जिद के सामने एक चबूतरा बनाया था जिसमें कमोबेश सहाबा बैठते थे और सुबह शाम, रात और दिन 24 घंटे हुजूर के दरे दौलत पर हाजिर रहते थे और हुजूर से इल्म हासिल करते थे, हुजूर से फैज़ हासिल करते थे। ये सुफ़ा चबूतरा अब भी वो उसे सीमेंट के हिसाब से, कारगच्ची से उसे बना दिया गया है। मेरे अजीज़ों दोस्त, अभी भी वो मौजूद है। दुनिया के सारे मदरसे जाकर सुफ़ा पर ख़त्म हो जाते हैं, दुनिया की सारी मस्जिदें जाकर मखाने काबा पर ख़त्म हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, हम ऐसे हैं कि हम अथेंटिक हैं, हमारा उसूल है, हमारा असल है। हमारे मदरसे ब्रांचेस हैं सुफ़ा के और हमारी मस्जिदें ब्रांचेस हैं खाने काबा के। मेरे अजीज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमारे उलमा
इस हिंदुस्तान में मकातिब का जाल नेट नहीं फैलाते, तो मेरे अजीजों उलमा ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान या तो ईसाई बन जाते या हिंदू बन जाते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जबलतुलमा ने 1950 में 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1950 में दीनी तालीमी बोर्ड कायम किया, तारीख इल्म, तारीख मदारिस, तारीख दीनी मदारिस कायम किया और ये अपील की मुसलमानों से और उसके लिए अमली जामा भी पहनाया कि हर मस्जिद में, हर महल्ले में एक मकतब हो, एक मदरसा हो, जहां पर तलबा को ये पहला दर्जा जो फर्ज आइन है उसकी तालीम। मेरे अजीजों, अगर ये सिलसिला ना होता तो हमारा ये हिंदुस्तान भी स्पेन बन जाता। स्पेन मालूम है? यू नो स्पेन? स्पेन जिसे उर्दू में हस्पानिया कहते हैं, अंग्रेजी में स्पेन कहते हैं, अरबी में उंदुलुस कहते हैं। मेरे अजीजों, ताबईन ने, तारिक इब्न जियाद ने, मूसा इब्न नजीर ने अपने 10-15 साथियों को लेकर समंदर पार करके स्पेन पहुंचे और उसे फतह किया। 800 साल मुसलमानों ने वहां पर हुकूमत की और फिर उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हुई। छीनते आखिर में अब्दुल्ला उंदुलुसी आखिरी बादशाह स्पेन का, उससे यहूदियों ने ममलकत छीन ली, खजानों की चाबियां छीनी और उसने सोने की तश्तरी में खजाने की चाबियों को रखकर पेश कर दिया। महल से उसे निकाल दिया गया। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर हसरत भरी आंसुओं से महल से निकल गया। थोड़ी फासले पर पहुंचा तो वो पलट कर अपनी बहन की तरफ देखना चाहा तो उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, चल चल क्या देखता है, मगर तुझे जो करना था नहीं कर सका। उन्होंने यूनिवर्सिटियों पर मेहनत की। इस अच्छी तरह सुनो मेरे भाई, ये बातें जो है गहराई की आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने किस पर मेहनत की? यूनिवर्सिटियों पर ऐसी मेहनत की, साइंसदान बनाए, रिसर्चमैन बनाए। उन्होंने इतनी मेहनत की कि दुनिया को अलजिब्रा की तालीम देने वाले स्पेन के मुसलमान थे, दुनिया को साइंस में माहिर बनाने वाले स्पेन के मुसलमान थे। खींच जो जर्रे अफसाल जिसे कहते हैं उसके भी माहिर वही थे। लेकिन जैसी मेहनत मदारिस पर करना था उन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से 800 साल के हुकूमत के बावजूद भी उसकी मैं तफसीलात नहीं कहना चाहता। अगर कहूंगा जी मेरा अजीजों कलीजा मुंह को आ जाएगा। वो असियत है, वो तकलीफ में मुसलमानों को उन्होंने जला दिया गया, दरिया में बहा दिया गया, खत्म, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सवाल नहीं पैदा होता, निकल गया इस्लाम वहां से। अब कोई वहां पर इस्लाम का नाम ले रहा नहीं है। वहां पर जो मस्जिद है वो मस्जिद अल-हमरा गरनादा में अल-हमरा मस्जिद है, जिसके 500 सुतून है। वो जमाने में वो मस्जिद खाने काबा से बड़ी थी, उन्होंने बनाए थे, जिसके मीनारे आसमान के पड़ोसी थे, जिसमें रोजाना कई मन तेल डाला जाता था चराग जलाने के लिए। आज वो मस्जिद अजान के लिए तरस रही है। आज वहां पर लोग जो है जाते हैं तो उनको चप्पल निकालने की इजाजत नहीं है, चप्पल पहनकर अंदर जाना है। कोई अदब से मुसलमान जूते निकाले पार कर दिया जाता है। जा बचा हजरत ईसा मसीह के मुजस्समे और उनकी तस्वीरें बनाई गई है। वहां पर बैठकर मुराकबा करना, सर को झुकाना, नमाज तो दूर की बात, बैठकर सर झुकाने की भी इजाजत नहीं है। मैं आपको तफसील सुर्खियां हेडलाइन बता रहा हूं। क्यों इसलिए कर रहा हूं? इसलिए कि जो काम करना था उन्होंने नहीं किया। कुर्बान चाहिए उस कलंदर पर। शेखुल अरबी वल अजम अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अगर हिंदुस्तान में 2 मेहनतें ना होती, जिन मेहनतों को हमारे बड़ों ने सर जोड़कर शुरू किया, तो इस हिंदुस्तान भी कभी का स्पेन बन जाता। पहली मेहनत ये मकातिब की है, सुबह शाम के मदरसों की है, जिसकी एक मिसाल तालीमुल कुरान है, जिसकी आपने तामीर की है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम की जाती है। मकातिब की मेहनत ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए। और दूसरी मेहनत जो है दावत तबलीग की मेहनत है, ये बड़ों के लिए खासकर है। अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ 1947 के बाद काम शुरू हुआ। जमीयत उलमा ने मकातिब की मेहनत की दाग में डाली और हजरत शाह मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर पुरफुतू बना दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से और उनके ईमा से और उनके इशारे से, उनके मनामी मुबशरात से आप हजरत शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह मदीने के क़ियाम को तरक करके हिंदुस्तान आए और ये इल्हामी काम शुरू किया, जिसकी वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये लोग चाहते हैं कि अपनी ज़बान की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें। अल्लाह ताला तो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेंगे। क्या जिब्रील को भेजेंगे, क्या मीकाईल को भेजेंगे, फरिश्ते आएंगे? नहीं, अपने नेक बंदों के जरिए से मकातिब की तामीर कराकर, उसका जाल बिछाकर, दावत तबलीग की मेहनत को आम और ताम करके अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेंगे। अगरचे के पसंद ना करने वाले पसंद ना करें। फूकों से ये चराग बुझाया नहीं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए इस मकतब की और तमाम मालूम में जितने भी मकतब हैं उनकी हमें कदर करना है। कोई मालूम का घर ऐसा ना हो जहाँ के बच्चे छोटे बड़े मकतब में जाकर इल्म हासिल करें। तालिब बालिगान का नेट भी हो, बड़े भी तालीम हासिल करें जी। उनको असर के बाद मगरिब बाद उनका कारोबार होता है, इशा बात करें, फजर बात करें। मेरे पास मिसालें हैं ऐसी बड़ों की जो इन्होंने तालीम हासिल करके आगे पहुंच गए। मैं 2-3 दिन पहले वाइटफील्ड के एक मकतब के इजलास में पहुंचा था। वहाँ पर एक कारी साहब ने ये बताया कि मैं एक मस्जिद में गया, बेंगलुरु की मस्जिद में से एक मस्जिद में गया, तो वहाँ पर एक लड़का, नौजवान लड़का कुरान की तिलावत किया और उसने सूरत दहर की तिलावत की जी। वज़ुहा अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका नहीं, सूरह दहर की तिलावत की जी। और इतनी अच्छी तिलावत किया कि मैंने समझा शायद ये हाफिज कुरान है और कारी साहब हैं। जब तिलावत खत्म हो गई तो मैंने उस लड़के से पूछा, बेटे कहाँ से फारिग हैं आप कहाँ से फारिग हैं? उसने कहा, हज़रत मैं तो दुनियादार हूँ, मैं फला कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ये वो क्या कहते हैं, MA क्या वो BBM कुछ ऐसे कुछ ने कहा, मैं पढ़ रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, इस ईयर में हूँ, फला साल में हूँ। तो हजरत कारी साहब की हैरत की इंतहा नहीं रही। उन्होंने पूछा, बेटे तुम इतना अच्छा कुरान पढ़े, किससे सीखा? क्या तुम हाफिज हो? हजरत हाफिज होने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़े बड़े सूरे मैंने याद कर लिए हैं, दुआ फरमाए मैं हाफिज बन जाऊँ। फरमाया, भाई तुम्हें कैसे बन रहे हैं, कैसे? हजरत हमारे महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से मैं पढ़ रहा हूँ। कोई दूर जाकर मैंने नहीं पढ़ा, कोई बड़े मदरसे में जाकर नहीं। किससे पढ़ा? मकतब में, इमाम मस्जिद के इमाम साहब से। मेरे अजीजों दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पढ़ रहा हूँ। हैरत की बात है, ये मकतब मामूली चीज नहीं है। ये मकतब जो सुबह शाम के मदरसे हैं, ये मामूली नहीं है। फिर वो नौकारी साहब ने पूछा, बेटे तुम्हें तजवीज से पढ़े, तरतील से पढ़े, जैसे पढ़ना वैसे पढ़े, तुम कायदे याद है बेटे? वो याद है, तख्तियाँ कायदे पूरे। उन्होंने बतौर इम्तिहान के पूछा, बेटे गुन्ना और इख्फा में फर्क मालूम है? अक्सर लोग गुन्ना इख्फा में क्या नहीं करते? बोलो भाई उलमा इकराम, बेटे गुन्ना और इख्फा में क्या नहीं करते? फर्क नहीं करते। आपको उसमें साफ हजरत गुन्ना अलग है, इख्फा अलग है। गुन्ना इसे कहते हैं, इख्फा। मेरे अजीजों, ये मामूली चीज नहीं है। हर पेशा गुमाम अबुर के खालिस। गुलिस्तान में किसी झाड़ी के बारे में, ऐसा झाड़ी को झाड़ जंगल में क्या रहते हैं? झाड़ा। किसी झाड़ी के बारे में ये गुमान मत करो कि वो खाली है, हो सकता है उसके पीछे चीता बैठा हो। अरे ये मकतब के बच्चों के बारे में ये ना समझो कि मामूली है। हो सकता है ये शेखुल हदीस बन जाएगा, इमाम रब्बानी बन जाएगा, बड़ा आलिम बन जाएगा। इसलिए मकतब को मामूली मत समझो, पाबंदी से बच्चों को मकतब भेजो। दुनिया में
जद्दे औलिया हैं। मेरे अजीजों, अच्छी तरह सुनो, बात खत्म कर रहा हूँ। एक है वली, बोलो, और एक है नबी। नबी मेहनत से नहीं बन सकता, कोई ना नबी वहाबी है। वहाबी अल्लाह ने अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसलन, अल्लाह तबारक तआला वो अल्लाह फरिश्तों में से और इंसानों में से अपने पैगंबरों को बुला के क्या करते हैं, चुनते हैं। अल्लाह ताला सेलेक्ट करते हैं। अपनी मेहनत से कोई नबी नहीं बन सकता। हाँ, वली क्या है, कसबी है, मेहनत से वली बनते हैं। दुनिया में जितने औलिया गुजरे हैं वो सब की इब्तिदा मकतब है। हजरत महबूब सुबानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज अला मकानी, सैयदुना व मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीम की इब्तिदा मकतब से हुई। तालीम की इब्तिदा कहाँ से हुई भाई, तफसीलात बोलना नहीं चाहता। हजरत ख्वाजा बख्तियार को इनके वाक़यात बताओ, रात पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक वाक़या हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। मौलाना कलीमुल्लाह साहब ने ये तवज्जो दिलाई थी कि माँ बाप को चाहिए कि वो क्या करें, निगरानी करें। माँ बाप को चाहिए बच्चों की निगरानी। अगर माँ बाप निगरानी नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाए। हमारे एक हजरत थे, निसार हजरत, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बच्चों का बाप हूँ। निसार हजरत तक को थे, नील संदर के वफात पा गए दावत तबलीग की मेहनत में। वो कहते थे बाबा खड़े हो को पेशाब कराया तो बच्चा दौड़ ले को पेशाब करता है। क्यों? फिसर नमूने फिकर कुव्वत, बेटा बाप का नमूना होता है और जहालत में आगे बढ़ सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों पर पूरी तवज्जो रखें, उनके ईमान को, उनके इस्लाम को, उनकी तालीम को मजबूत करने की फिक्र करें। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक़या मशहूर है कि हजरत की अम्मी जान ने जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 4 साल के हो गए तो मकतब में उनको बिठा दिया, जाओ बेटे, ये हजरत हाफिज जी हैं, इनके पास तुम्हें क्या करो, इनके पास तुम्हें कुरान पढ़ो, इनके पास तुम्हें क्या पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत जाते थे, कौन बोलो, क्या नाम बोलो भाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाते थे। और जब मकतब से आते तो हजरत को बहुत भूख लगती थी, आकर बोलते अम्मी खाना, अम्मी रोटी, अम्मी रोटी क्यों अम्मी? तो माँ ने कैसी तरबियत की, जो भी वली बने हैं माँ की तरबियत से, औरत की तरबियत से वली बने हैं। मेरा ये मैसेज माओं को पहुंचा दो, हर औरत माँ होती है। मेरा ये मैसेज भाइयों माओं को पहुंचा दो। फरमाया हर वली के, वली या दादी का दखल, या नानी का, या फूफी का, या खाला का, हाँ, ये महरम और पेरेंट्स औरतों का दखल, जिम्मेदार औरत। आप समझते? तो माँ कहती थी बेटे भूख लगी है तो अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? मैं भी किससे मांगती हूँ, तुम भी क्या करो, अल्लाह से मांगो। तो बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा अम्मी जान अल्लाह से कैसे मांगे, अल्लाह से? तो माँ ने तरीका सिखाया अल्लाह से मांगने का। बेटे वजू करो, खुशू से अच्छी तरह वजू करो, आदात की रियायत करते हुए, फिर मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ो, अच्छी तरह नमाज, अल्लाह देने वाले। फिर हाथ उठाकर दुआ मांगो, अल्लाह मैं भूखा हूँ, तू मुझे बोलो भाई तू मुझे रोटी दे, मैं भूखा हूँ, तो मुझे अल्लाह दे देंगे। अब बच्चा वजू किया, नमाज, अब माँ जो है फौरन छुप कर रोटी बनाई, घर के बर्तनों में से एक बर्तन में उसे छुपा कर रख दिया। बच्चे ने नमाज पढ़ी, दुआ की अल्लाह मुझे रोटी दे दे, धन्य हाथ उठाए रोटी दे दे। अब रोटी के बाद, दुआ के बाद बच्चे ने पूछा अम्मी मैंने तो दुआ करती, रोटी कहाँ है? माँ ने कहा बेटे ढूंढो, अल्लाह ने कहीं ना कहीं रखी होगी। कहाँ ढूंढो? ये घर के बर्तन है, ढूंढो, छोटे बड़े बर्तन है, ढूंढो। अब बच्चा, मासूम बच्चा, 4 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा ढूंढ रहा है, इधर आखिरकार एक बर्तन में, एक देगची में, एक हांडी में रोटी मिली, उसके खुशी की इंतहा नहीं रही। अब वो बच्चा खाया, पेट भर गया और वो सो गया, नमाज पढ़ के सो गया। अब माँ बच्चे के आने से पहले रोटी बनाकर रखती थी, रोजाना का ये मामूल, आने से पहले रोटी बनाकर किसी बर्तन में रखते थी। बच्चा
मदरसे से आता घर, वजू करता, भूखा रहता, वजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ के हस्बे सादिक हस्बे मामूल 2 अल्लाह रोटी दे, अल्लाह रोटी में भूखा उठ रखा। अब दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला जी तो अल्लाह से तबारक ताला से दुआ के बाद अपनी माँ के बताए हुए तरीके पर वो रोटी ढूंढता तो उसे रोटी मिल जाती। ये मामूल चलता रहा यहाँ तक कि हजरत ख्वाजा साहब की माँ को अपने रिश्तेदारों में से किसी रिश्तेदारों के पास कुछ जरूरी काम से जाना हो गया। ये सोचकर वो घर से निकल गई कि मेरा बेटा आने से पहले मैं क्या हो जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी और रोटी बनाकर उसे रख दूंगी। लेकिन आने में देर हो गई, फासला ज्यादा था। अब दिल की धड़कन तेज हो रही है कि बच्चे का आने का वक्त हो गया, तेजी से आ रही है लेकिन फासला दूर का है। धड़कन तेज हो गई, कदम तेज हो गए, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह मेरा बच्चा आया होगा, खुद भी दिन आया होगा, बख्तियार आया होगा, मेरा नूर नजर, मेरा लख्त जिगर, मेरा दिल का टुकड़ा आया होगा। और वो दुआ करके नमाज पढ़ के दुआ मांगा होगा। अब वो रोटी ढूंढ रहा होगा, मैंने रोटी नहीं बनाई है अल्लाह, अगर उसे रोटी आज नहीं मिले तो उसका ईमान बिगड़ जाएगा, उसका यकीन बोलो भाई खत्म हो जाएगा। अल्लाह तू, मैंने जितनी कोशिश की वो कोशिश की, अब तू उसका ईमान बना दे, उसके ईमान तू मजबूत कर दे, ईमान में बिगाड़ ना फरमा। तू बड़ा है, तू ताकत वाला है, तू रोटी तूने बनाया, तू रोटी मेरे बच्चे को दे दे। अब ये दुआ करती माँ तेज रफ्तार से, सख्त तेज कदमों से धड़कते हुए घर आई। दिल उसका मचल रहा था, सांस फूल रही थी। देखा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन प्यारे बैठे हुए, पूछा बेटे रोटी खाई? बच्चे ने जवाब दिया कि जान खाई, लेकिन ऐसी रोटी खुदा की कसम अल्लाह ने आज तक नहीं दी मुझे। ऐसी रोटी खुदा ने आज तक नहीं दी जो आज अम्मी जान इससे पहले की रोटियां क्यों ऐसी नहीं मिली जो आज मिली? माँ ने धड़कते दिल से पूछी, बेटे वो कैसा? अम्मा तुम्ही तो कहा था, तुम्हारे तरीके के मुताबिक मैंने दुआ की, नमाज पढ़ी, दुआ की, मैंने फिर घर के तमाम बर्तनों को ढूंढा, कहीं मुझे रोटी नहीं मिली। कहीं मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह रोटी ना दे। मैं परेशान था कि अल्लाह मेरे से नाराज हो गए। आखिरकार मजबूर होकर मैंने मुसल्ले को उठाया, जानमाज को उठाया तो देखा नीचे रोटियां हैं और उनसे ऐसी खुशबू आ रही है और इतनी महक हो रही है कि जानमाज उठाते ही पूरा घर खुशबू से महक गया। खुशबू के